سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دور جہاں بہت ماڈرنائز طریقے سے ٹیکنالوجی کے زور پر ترقی کر رہا ہے، وہیں ہمیں بہت ساری چیزوں سے اس جو ٹیکنالوجی ہے اس سے تھوڑا سا اپنا ڈیفنس بھی کرنا ہے، اس سے ذرا تھوڑا سا بچ کے رہنا ہے۔ میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، ذہن میں رکھیے گا، میں خود ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہوں۔ ابھی آپ یہ زوم کی جو ہماری آن لائن محفل ذکر ہے اسی کو لے لیں، یہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ تک پہنچ رہی ہے نا۔ تو میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس پر نظر بڑی کڑی رکھنی ہے، بہت کڑی نظر رکھنی ہے۔ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارے بہک جانے کا، یا ہم تو اب چلیں یہ کہہ لیں کہ میچور ایج میں ہیں، بچوں کے جو ینگسٹرز ہیں، جو ہمارے یوتھ ہیں، جو جوان بچے بچیاں ہیں، ان کے کہیں نہ کہیں بہک جانے کا ڈر ہے۔ لہٰذا جہاں آپ نے ٹیکنالوجی پہ نظر رکھنی ہے وہاں بچوں پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں، جہاں بہت کچھ ہمیں دینی اعتبار سے بھی پڑھنے، سننے اور سمجھنے کو مل سکتا ہے، وہیں پر بہت ساری نیگیٹیوٹی بھی ہمیں انہی سوشل میڈیا کے پیجز سے ملتی ہے۔ میں پہلے بھی شاید ایک بار یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے جمعے والے دن یا تھرسڈے والی نائٹ کو ہی کوئی 150-200 میسج آ جاتا ہے جمعہ مبارک کا، اور بہت سارے دعائیہ کلمات، یعنی جو وہ ایڈ بنی ہوتی ہیں، وہ ایون ویڈیو بھی، تو وہ آ جاتی ہیں۔ وہ دعائیں آپ پڑھ لیں جی، اور آگے آمین لکھا ہوا ہے، وہ دعائیں آپ سن لیں جی، اور اس میں آمین کہہ رہے ہیں جی۔ ہم نے اتنی بار یہ سلسلہ درود پاک کا شروع کیا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں جی، اور آگے لوگوں کو بھیجیں جی۔ تو بہت سارے میسیجز ملتے ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب ہم ان سوشل پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہمارے گھنٹوں 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 انہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نے لفظ ضائع استعمال کیا ہے، غور کیجیے گا، واقعی ضائع ہو جاتے ہیں۔ گھنٹوں فیس بک پر لوگ بیٹھتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں، میں اپنے بزنس پرپس کے لیے یوز کرتا ہوں۔ لوگ گھنٹوں 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 فیس بک پر لگا دیتے ہیں، گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ ہے، میں موسٹلی میجورٹی میسیجز نہیں دیکھتا، کئی دن بعض اوقات ہوتے ہیں نہیں دیکھتا، صرف دیکھا جو لسٹ میں ضروری کسی کا میسیج آیا، یا کسی سائل کا، کسی مرید کا، کسی کا، تو میں بس وہ دیکھ لیتا ہوں۔ ادروائز جو گروپوں نے مجھے ایڈ کیا ہوا ہے وہ بہت سارا مٹیریل بھیجتے رہتے ہیں، میں نہیں دیکھتا، یا یہ کہہ لیں قسم نہیں کھاتے، شاید کبھی کوئی دیکھ لیا ہو، ایسے کہہ لیں۔ جو لوگ یہ دعائیں بھیجتے ہیں آپ کو، کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ آیات مبارکہ اتنے لوگوں کو بھیج دی، دعائیں میں نے اتنے لوگوں کو بھیج دی، جمعہ مبارک کا میسیج اتنے لوگوں کو بھیج دیا، رمضان مبارک کا، عید مبارک، تو وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو میسیجز بھیجتے ہیں، اور باقاعدگی سے بھیجتے ہیں، یہ سوچ کر شاید یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، یہ بہت بڑا بلیسنگ ہے جو اس سے مجھے اکٹھی ہوتی ہے۔ کچھ نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی، بس نیکیاں آ گئی میرے کھاتے میں۔ یہ الوژن ہے، خدا را اس سے بچیں۔
इतना टाइम आप कुरान पढ़ने पे लगाएं, इतना टाइम आप बैठकर जिक्र करने पे लगाएं, इतना टाइम आप को दीनी शरीयत की, रूहानियत की, अहादीस की किसी किताब का मुताला करें, ज्यादा फायदा होगा। नफल पढ़ें, ज्यादा फायदा होगा। कुरान से बड़ी कौन सी किताब है जी, चले कुरान पढ़ें, फायदा होगा। इस तरफ ना जाएं। और होता क्या है, मोस्टली अल्यूशन है, इसमें धोखा है, फरेब है। क्या फरेब है जी? किसी ने फेसबुक आईडी बनाई हुई है, तो वो हो सकता है कि मेरी उम्र का 60 साल का बंदा हो, 55 साल का, लेकिन उसने एक फेक आईडी बना के ना जी, यंग एज लिखकर, तो वो और कुछ नहीं तो फ्लर्ट कर रहा है माज़अल्लाह, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। लोग बहुत सारे मकरो फरेब करते हैं। हाँ, अपनी तस्वीरें वो क्या कहते हैं, फोटो एडोब और जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें जाके एडिट करके बड़ी खूबसूरत बना के, होता वही है बंदा, लेकिन वो असल मुशाबे नहीं होता, बल्कि बहुत यंग एज बना देते हैं आपको, बहुत खूबसूरत बना के आपको दिखा देते हैं। लोग सोचते हैं हाँ हाँ यार ये बहुत, यहाँ तक कि फिर लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ सीरियसली अटैच हो जाते हैं। शादी तक बात आ जाती है कि हाँ हाँ ठीक है जी, वी सेटल डाउन टुगेदर एज ए पार्टनर। और फिर जब असल बात सामने आती है तो पता लगता है हो ये तो धोखा था, लेकिन पानी सर से गुजर चुका। फिर वो शादियां कैसे कामयाब होगी जो झूठ की बुनियाद पर, धोखे की बुनियाद पर रखेंगी। ये तस्वीरें एडिट करने वाली भी बात आपको बताता चलो, हमारे एक अजीज हैं, जानने वाले हैं, उनमें भी ये रिश्ता टूट चुका है, शादी टूट चुकी है। भाई लड़की की जो तस्वीर दिखाई थी वो लड़की वो थी ही नहीं, वो जो भी था उसका सॉफ्टवेयर के साथ उसको प्ले करके खूबसूरत बना के उसको पेश किया गया। तो खुदारा बचे इन चीजों से। लोग तो इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पर चले जाते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। अल्लाह पाक रहम वाला मामला फरमाए। हमें इन चीजों से बचना है, ना सिर्फ खुद बचना है, अपनी औलादों को बचाना है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, मैंने बात जहां से शुरू की, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसी सोशल मीडिया को अगर हम दीन के लिए यूज करें, कोई अच्छी तालीमात के लिए यूज करें, कुरान को पढ़ने, देखने, सुनने, समझने, उसके तर्जुमा, उसकी तफसीर में जाने के लिए उसको यूज करें, तो यही सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। ये तो बल्कि मैं ये कहूंगा ब्लेसिंग है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा खपना नहीं पड़ा, मुझे जाके किसी स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी, किसी किसी मदरसे या किसी इलामा के पास टाइम अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाना पड़ा। मैंने जो जेन्युइन किस्म के, पॉजिटिव किस्म के हमारे हम ख्याल, हम मसलक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाके मैंने अपना जो रूहानी मसला था, जो शरई मसला था, जो कुरान की इंक्वायरी थी, वो मैंने वहाँ से कर ली। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदा दे सकती है, बल्कि दे रही है। बस इसकी जो खराफात हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो इसकी नेगेटिविटी है, उससे साथ-साथ बचना बड़ा ज़रूरी है। और मोस्टली एंड मेजॉरिटी ये जो फेसबुक और दूसरे तीसरे हैं ना जी, ये कहीं ना कहीं सोशल एंटरटेनमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो धोखे से भरे हुए हैं, वो झूठ से भरे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मुबालगा है उसमें, चीटिंग है उसमें। लिहाजा खुद भी इन प्लेटफॉर्मों से बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, ताकि वो ना हो कि आपका बेटा है या बेटी है, वो ऑनलाइन ही किसी के साथ फ्रेंडशिप करके सीरियस हो जाए, और फिर जब सीरियस होते हैं बच्चे, अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह, फिर वो माँ बाप को उल्टा लटका देते हैं कि नहीं नहीं तू मेरी बात मान, अब तुम मुझे इजाजत दो। तुम मानते क्यों नहीं हो कि मैं बहुत सीरियस हूँ इस लड़की के साथ, या लड़की कहती है मैं बहुत सीरियस हूँ इस लड़के के साथ। जीना हराम कर देती है वो फैमिली का, पेरेंट्स का। वो खाना पीना छोड़ देती है, वो अपने आप को हार्म करने से भी गुरेज नहीं करते फिर बच्चे। तौबा। तो इसलिए ना जी, प्लीज सोशल मीडिया को पॉजिटिविटी के लिए, अ, अच्छे दीनी मामलात के लिए जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे बचा जाए और अपनी औलादों को भी बचाया जाए।
और अपनी औलादों के साथ, बेटा हो या बेटी, उनके साथ दोस्ताना माहौल बना के उसको बिठा के बताएं, दिखाएं, समझाएं, बजाय इसके कि वो चोरी छुपे आपसे छुपा के अकेले में कोई ऐसा कोई अकाउंट खोल के बैठा हो और आपको खबर ही ना हो। दोस्ताना माहौल में उसे बताएं कि ये देखो भाई, ये सोशल मीडिया, ये देखो इस तरह से ये हो रहा है। अवेयरनेस दें उनको, ताकि वो उस बुराई से, उस डॉज से, उस ट्रिक से बच जाएं। आप माशाल्लाह समझदार हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, कभी अब हमें कोई क्या खराब करेगा या कोई क्या डॉज देगा, जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें तो वो हमें डॉज दे। लेकिन यंग बच्चों का बहुत जल्दी रुझान, इंटरेस्ट बढ़ जाता है इन चीजों की तरफ, और फिर लोग, जैसे मैंने बताया कि इल्यूजन, झूठ की बुनियाद पर अकाउंट क्रिएट करके, फेक अकाउंट क्रिएट करके, तालीम बड़ी अच्छी लिख के, इलाका बड़ा अच्छा लिख के, नेशनैलिटियां बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की लिख के, तस्वीरें बड़ी वो एडिट करके बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की लगा के, और बड़ी डींगे मार के, बड़ी अल्फाज की जिम्नास्टिक खेल कर वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर ट्रैप करके कहीं ना कहीं वो अपना मकसद, अपना फायदा उनसे हासिल करते हैं। चलो भी नहीं, भी कोई फायदा हासिल नहीं करते, कोई अट्रैक्शन नहीं देते, फिर ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक अजीब सा फतूर है कि अच्छा भी मेरे इतने फॉलोअर हैं मैंने क्या करना है उन फॉलोअर्स को, मुझे को कमाई देते हैं, कोई जाय नमाज पे बैठकर मुझे दुआएं देते हैं वो फॉलोअर। मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ, आप लोगों की नहीं बात कर रहा, प्लीज अपनी तरफ ले जाना। ये जितने भी सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, या वो लाइक मुझे भेजते हैं जी, इतनी लाइकें आ गई, भाई चलो लाइकें आ गई, फिर क्या करना उस लाइकों का, कहीं कब्र में हशर में काम आएंगी वो लाइक्स? अस्तगफिर, इल्यूजन है ये, एक कूड़ है, एक धोखा है, एक फरेब है, एक रोशनी है जो हमारी आंखों को चुंधिया देने वाली है, और हम बड़ी खुशी से उस रोशनी में उतरते चले जा रहे हैं, लेकिन वो इल्यूजन है। प्लीज खुदा इससे बचे। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, दोस्ताना माहौल में उनको एजुकेट करें, बताएं कि बेटा ये चीजें हैं, इनसे बचना है, बताएं कि भाई इन प्लेटफॉर्म्स को, इन सोशल जो सोर्सेज हैं, जो फ्री सोर्सेज हैं, इनसे आपने तालीम कैसे हासिल करनी है, इससे आपने फ़ायदा कैसे उठाना है। कुरान की रिसर्च आप करें, आप कोई नात शरीफ के लिए करें, कोई ज़िक्र की महफ़िल के लिए करें, कोई अच्छी तालीमात के लिए, अच्छे विज़डम के लिए, फ्रीडम के लिए। जब आप नेक नीयती से इस पर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यही सोशल मीडिया, यही प्लेटफॉर्म्स, यही टेक्नोलॉजी, यही क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट, या आने वाला जो रेवोल्यूशन है जो टेक्नोलॉजी का, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करते हैं जी, बल्कि अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली या रब्बे जुल जलाल या मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह, तेरे नाम मुबारक के जिक्र के लिए इकट्ठे हुए हमारी हाजिरी कबूल फरमा। अल्लाह, तेरी और तेरे महबूब की बातें की कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह, थोड़ा जिक्र किया हमने, तू ज्यादा करके कबूल फरमा, हम सब के लिए बायसे बरकत, बायसे रहमत, बायसे नजात बना दे। ये महफिलें सदा आबाद व शाद रहें, ऐसा करम अता फरमा। ये जो तालीमात हैं ये हमारे लिए नाफे हो जाएं, फायदे वाला, नफे वाला इल्म बन जाए। अल्लाह ऐसा करम अता फरमा। हम बाअमल एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, या अल्लाह हमें अच्छे अमल करने वाला, बाकिरदार, सच्चा और सुच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाह, हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, हमें जिक्र और फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, अपना फक्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह, हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। सब कुछ दिया है तूने, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तकामत अता फरमा। जब वक्त मौत आए तो कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। कब्र की, हशर की मंज़िलें आसान फरमा। अल्लाह, हमारे भाई शजीद्दीन साहब के वालिद ग्रामी
अल्लाह अपने वक़्त पर चले गए, बेशक तू उन्हें अजीज रखता है। या अल्लाह तूने अपने पास बुला लिया है, मालिक हम तेरी रजा पर राजी हैं, बेशक ये तेरा अमर है, हर एक ने आना है। या अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमा, उनकी कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बना दे। या अल्लाह जब रोज़े महशर उन्हें उठाया जाए तो उनका चेहरा तेरे नूर से चमक रहा हो, उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में हो। रोज़े महशर उनके लिए सवारी रुत पेश किया जाए ताकि वो उस मैदान तक पहुंच सके, अर्श के साए के नीचे। या अल्लाह तेरे अर्श के साए के नीचे मुबारक जगह पर उनको जगह मिले, साया मिले। हजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कुबरा नसीब हो। जन्नतियों को आवाज पड़े तो वो आवाज वो सुने, परवाना जन्नत का लेकर पुल सरात से खुशदिली से गुजर जाएं, जन्नतुल फरदौस में आला मकाम हो। तेरे फजल और करम से अल्लाह उनका बेड़ा पार हो। तेरे फजल और करम से हम सब के आबा व अजदाद का जो दुनिया से चले गए, वालिदैन, मशाइख, असातिज़ा, सब का बेड़ा पार हो, सब के मकाम बुलंद हो। ऐसा करम अता फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती बुलंद दर्जा अता फरमा। जो चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। जो भी बुजुर्ग हमारे बड़े बूढ़े जिन्होंने हमसे मोहब्बत की, हम पर शफकत की, हमारे साथ सिलाए रहमी बरता, अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमा। दुनिया व आखिरत में अजर अजीम, दुनिया व आखिरत में बेहतरीन अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह अपना करम अता फरमा, अपना फजल अता फरमा, अपना फ़क्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं साथी, उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा दे। जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा दे। हम सब के ज़ाहिर व बातिन में किसी भी किस्म की कोई पोशीदा या ज़ाहरा, कोई दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, मुसीबत हो, बला हो, परेशानी हो, कोई असेब हो, कोई सहर हो, कोई जादू टूना वार हो, अल्लाह सब रद्द फरमा दे, सब दूर फरमा दे, अपने करम से दूर फरमा दे। अल्लाह अपने महबूब के सदके वसीले से दूर फरमा दे। तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा ले। हमारी अपनी गलतियों कोताहियों पर हमारी पकड़ ना करना। कोई आजमाइश, कोई बंदिश हो, अल्लाह दूर फरमा देना। हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं हैं। अल्लाह हम तेरे गजब से डरते हैं। अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारे आड़े टेढ़े बोल माफ फरमा दे, हमारे छुपे ढके सब गुनाह माफ फरमा दे। अपना करम अता फरमा। नमाज की तौफीक, जिक्र अज़कार की तौफीक, कुरान पढ़ने की तौफीक, रोजे रखने निभाने की तौफीक, हज उम्र की तौफीक, ज़कात की तौफीक, हर चीज की तौफीक तेरे पास है। अल्लाह अपने करम से अता फरमा दे, अपने करम से अता फरमा। जिन्होंने भी दामे, धर्मे, कदमे, सुखने, सलाहियत से, वक्त से, पैसे से, जिस तरह की भी दीन की खिदमत की है और कर रहे हैं, अल्लाह सब की खिदमत को कबूल फरमाते हुए दुनिया व आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमा। जो माल हमने पेश किया बेशक तेरा ही दिया हुआ था, तेरा ही अता किया हुआ था। जो भी माल तेरी राह में खर्च किया अल्लाह कबूल फरमाते हुए हमें दुनिया व आखिरत में भलाई और खैर अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल और मकबूल फरमा। जिस वली कामिल ने, मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे।
पूरी दुनिया में आम फरमा दे, हमसे भी मुस्तफीद, हमें भी उनकी फीज़ो बरक़ात से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा, हमें भी इस मिशन को लेकर आगे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरा कुर्ब चाहते हैं, तेरी रजा चाहते हैं कि तू हम पर राजी हो जा। अल्लाह हमसे, हमारे साथियों से, हमारी औलादों नस्लों से दीन का काम ले ले। जो दीन का काम कर रहे हैं, किए हैं, उनको कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। या अल्लाह कुल उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा। बिलखसूस उम्मत मुसलमान के लिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह अपना रहम अता फरमा दे, अपना करम अता फरमा दे। जो साथी हाथ उठाए बैठे हैं, आमीन कह रहे हैं, ये लाइव जो बैठे हुए हैं, ये जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अल्लाह सब की दिली हाजात पूरी फरमा, सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे, सबकी दुख तकलीफें बीमारियां दूर कर दे, सबकी परेशानियां दूर कर दे। किसी को कोई कोर्ट कचहरी का, कोई इमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा, अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा। खसूसन बिलखसूस उमर बाबा के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जॉब्स हैं, या अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमा दे, बेहतरी वाला मामला फरमा दे, नेक असबाब अता फरमा दे, तरक्की अता फरमा दे, अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे। तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं, बेशक तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना आतिना मोहब्बत ज़ातिका व मारफत सिफ़ातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। आप तमाम सामाईन को, नाज़रीन को, पार्टिसिपेंट को आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको खुशबख्ती अता फरमाए, खुशबख्त हैं आप, और इसमें इजाफा फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।